اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلے جو خطبہ جمعہ یعنی پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے جو اعمال ذکر کیے گئے تھے سرسری طور پر وہ ریپیٹ کر دیے جائے۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے آئی تھی وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ لعنت کے مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات آئی تھی اللہ کے لعنت کے ساتھ ساتھ کہ شریعت اسلامیہ کے احکامات کو ٹھکرا دینا یعنی اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یا ان کا مذاق بنانا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آئی تھی کہ انسان اس چیز کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے اس کو ایکسپٹ نہ کرنا، حق کو نکار دینا یا حق کو چھپانا، یہ بھی لعنت کے مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بات آئی تھی وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام برا ہے اور ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے سامنے یہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن ہم انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایسے شخص بھی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آئیے مزید اعمال میں سے ایک عمل جو ہمارے سماج میں ایک ناسور بن چکا ہے، آج اس اعمال کی بنیاد پر ایک بھائی کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے دور ہے، اس کا دوسرا نام اگر کہہ دیا جائے تو وہ قطع رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں سے الگ تھلگ رہنا۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے جس کی بنیاد پر انسان لعنت کے مستحق قرار پاتا ہے۔ صلہ رحمی انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کو لازمی پکڑا جائے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ جو ریلیشن ہے، جو مادر رحم سے آپ کی ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن ہے، ان سے تعلقات بنائے رکھنا، ان کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے سماج میں تو یہ چیزیں دور دور سے بھی ہمارے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ آج بھائی بھائی سے دشمن ہے، باپ بیٹے سے دشمن ہے، بیٹے باپ سے دشمن ہے، اور اسی طریقے سے حتیٰ کہ میاں بیوی کے اندر بھی یہ صلہ رحمی کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں، لیکن اس میں بھی نفرت کا بیج بو دیا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ حسن سلوک کا معاملہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، جبکہ ہمیں قرآن کریم میں اس تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، کہ جو شخص اپنے ریلیشن کو کاٹ دے یعنی قطع تعلق اختیار کرے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں گے تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، جو لوگ قطع تعلقی کو لازمی پکڑتے ہیں، جس چیز کا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں، نقصان دہ ہیں، ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے
کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں، ان کی تکالیف میں ہم شامل ہوں، ان کے سکھ میں ہم شامل ہوں، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی مثال تو حدیث میں یہ آتی ہے کہ بالکل ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو پوری جسم اس کی بیمار ہو جاتی ہے۔ ہاتھ کے کسی ایک انگلی میں اگر کٹ لگ جاتا ہے تو پوری شریر ان میں تکلیف ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جسم کے مانند ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن کالجسد، کہ ایک مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ لیکن آج یہ چیزیں ہمارے اندر دور دور سے نظر نہیں آتی ہے، اسے دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم نے صلہ رحمی نہیں کی، قطع تعلقی کی، تو یہ ہمارے لیے لعنت کا باعث بنے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا عمل جسے آج سماج کے اندر یہ بھی بہت پروان چڑھ رہا ہے، بات بات میں ہم اس بات کو کہتے ہیں، اپنے پاک باز عورتوں کو، اپنے پاک باز بیویوں کو، بہنوں پر یہ الزام تراشی کرنا، یہ تہمت لگانا، یہ بھی لعنت کے مستحق قرار دینے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخصوں پر بہت سخت وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر جو پاک باز ہو، صالح عورت ہو، جو نیکوکار میں سے ہو، ایسی عورت پر اگر الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو ان کے لیے چاہیے ضروری ہے کہ 4 گواہ پیش کریں۔ اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ وہ تو گویا کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے 4 گواہ پیش کرنے کے لیے کہا، کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہتان تراشی یا الزام لگانا کتنی بڑی جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس میں سختی سے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسرے ارشاد فرماتا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، کہ جو شخص پاک باز عورتوں پر، جو سیدھی سادی عورتیں ہوتی ہیں، جو بھولی بھالی عورتیں ہوتی ہیں، مومنات نیکوکار ایمان والی عورتیں ہوتی ہیں، ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر لعنت ہے، دونوں جگہ پر لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے، ان اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کے ذریعے سے ہم اور آپ لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور یہ چیزیں آج کے سماج میں ایک عام چیزیں ہو چکی ہے، اور اس میں ہم نے نقالی کی ہے کسی غیروں کی، یہ اسلام کا شیوا نہیں تھا، لیکن ہم نے نقالی کرتے ہوئے، غیروں کی نقالی کرتے ہوئے ہم نے یہ عمل اپنے اندر داخل کر لیا ہے۔ ایک چیز کیا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں یہ کیا کرتی ہیں کہ مردوں جیسا اپنی شکلیں بناتی ہیں، اپنی چال ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی عورتیں بھی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ایسے عورتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمیوں پر جو آدمی ہونے کے بعد بھی، لڑکا ہونے کے باوجود بھی، باعث ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکیوں کی مشابہت اختیار کریں، لڑکیوں جیسا بننے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے مغربی تہذیب، مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لباس لڑکیوں کا ہے وہ لڑکے پہنتے ہیں، جو لباس، جو چال ڈھال لڑکیوں کا ہے وہ لڑکے کرتے ہیں، تو ایسے لڑکوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو عورت ہونے کے باوجود، لڑکی ہونے کے باوجود لڑکوں جیسا چال ڈھال اختیار کرے، چاہے چلنے میں، لباس پہننے میں، یا پھر
इसी तरीके से खान पीन में, हुकूमत में, ऑर्डर चलाने में, किसी भी तरीके से अगर वो लड़की होने के साथ लड़की जैसा नई तरीका इख्तियार करते, मर्द बनने की कोशिश करते हैं जैसे मगरबी कल्चर में है, और वही चीज आज हमारे समाज में, हिंदुस्तानी कल्चर में आ चुकी है, और ये कल्चर बन चुका है कि हम औरतें इक्वल हैं, हम औरतें बराबर हैं, उसके बाद वो मर्दों जैसा काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसी औरतों को चाहिए कि वो सोचे अपने बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी औरतों के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को मलऊन करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के लिए लानत भेजी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, वल मुतशब्बिहात मिनन निसा, कि ऐसी औरतें जो मर्दों जैसा शक्ल व सूरत इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, मर्दों जैसा लिबास पहनते हैं, ऐसी औरतों के लिए अल्लाह की लानत हो। इसी तरीके से आज अफसोस का मकाम ये है कि लड़कियां जो करती तो करती हैं, घर वाले भी इस पर बात आई थी, बड़े जोर की सपोर्ट करते हैं। बच्चियां हैं, और बच्चियां कह के जो मर्दों का लिबास होता है, जींस पैंट, टी शर्ट, शर्ट, और उनको खरीद कर देते हैं और फिर उनको पहनाते हैं। याद रखें, अगर आपने बुलूगत से पहले ये तालीम अपने बच्चों को दी, आदत आपने डलवाया, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि बच्चों की परवरिश करना आपकी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें बच्चा अता किए थे, वो नेकोकार और दीन पर चलने वाले, फितरत पर बच्चे अता किए थे, लेकिन हमने उन फितरत से उनको चेंज करके उन्हें दुनियावी माहौल में ढाल दिया। हमने उन पर जींस पैंट और टी शर्ट पहनवा कर हमें उन्हें दुनिया की कल्चर में ढाल दिया। ये जिम्मेदार हम और आप हैं। अब बड़े होने के बाद कहते हैं कि बड़ी बच्ची हो गई है, या बड़े हो गए हैं, कमाने के लायक हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, टोकने अच्छा नहीं लगता। तो भाई, आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि ये बच्ची बड़ी हो जाएंगी तो हम टोक नहीं सकते, हम उन्हें रोक नहीं सकते? तो बचपन में आपने क्यों नहीं रोक टोक किया, जब आपके हाथ में थी, जब आपकी परवरिश में थी, जब आप उन पर सारी चीजें इखराजात करते थे, आप कपड़े खरीद के देते थे, आप मार्केट करवाते थे, तो फिर आपने उस वक्त क्यों नहीं गौर किया? तो याद रखें, जो औरतें गैरों की नक्काली करते हुए अपने घर वालों पर फोर्स करते हैं कि दुनिया बहुत आगे चल गई है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, तो हमें क्यों ये परमिशन नहीं मिलेगी, क्यों इजाजत नहीं मिलेगी कि हम दुनिया वालों की तरह चलें? तो याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको दीन इस्लाम जैसी दौलत से सरफराज किया है, इस दीन इस्लाम के अंदर ये कतई इजाजत नहीं है कि आप मर्दों जैसा चाल इख्तियार करें, कपड़ा पहने, लिबास यूज करें, या मर्दों जैसा बाजारों में, सड़कों में, मार्केटों में घूमे। ये इजाजत आपको नहीं है। मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी मर्दों की है, तिजारत करने की जिम्मेदारी औरतें भी तिजारत कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से आज के डेट में की जा रही है, मर्दों से खलत मलत होकर, और ये इसी तरीके से मार्केटिंग करना या खेती करना, ये सारी चीजें जब मर्द घर में मौजूद हैं तो ये मर्दों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए इसमें मर्दों जैसा बनने की कोशिश करना, हम अपने आप को लानत के मुस्तहिक करार पाते हैं। इससे पहले भी आपके सामने इस ताल्लुक से एक हदीस बयान की गई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नज़र रहमत से नहीं देखेगा। जिनमें से एक वो लोग होंगे अल-आक, जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की होगी, और दूसरा वो शख्स होंगे अन्निसाउ मिनर रिजाल, यानी औरत होंगी लेकिन वो मर्दों के चाल ढाल इख्तियार करेंगे।
मर्दों जैसा चलेंगे, मर्दों जैसा लिबास पहनेंगे, तो ये ऐसे लोग होंगे जिनकी तरफ कल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नज़र रहमत से नहीं देखेगा। लिहाजा हमें जरूरत इस बात की है, बाप होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते, हम अपनी बच्चियों को इस्लामी चाल ढाल में ढालें, उनको तरबियत दें कि वो मर्दों जैसा शक्ल इख्तियार ना करे, मर्दों जैसा चाल इख्तियार ना करे, ताकि वो जहन्नम की आग से बच सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमान कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां आपको, अपने आप को जहन्नम की आग से बचने का हुक्म दिया है, वही आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी सौंपी है कि आप अपने अहले खाना को, अपने बाल बच्चे को, अपने रिश्तेदार को, अपनी बीवी को, ये सारी चीजें अपने अहले खाना में जितने लोग शामिल होते हैं, और ये अहले खाना हर एतबार से चेंजिंग होगी। अगर आप समाज के लीडर हैं तो पूरी समाज आपके अहले खाना में आता है। अगर आप किसी घर के, सिर्फ घर के जिम्मेदार हैं, तो आपके घर में जितने लोग हैं, आपके मातहत जितने लोग हैं, उनके जिम्मेदार आप हैं, ये आपके लिए अहले खाना है। तो ऐसी सूरत में हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाए और अपने अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचाए। और जहन्नम की ईंधन ये जैसे हम और आप सीएनजी यूज करते हैं, ये लकड़ियां जला के आग जलाते हैं, ये नहीं है। वो आग जो भड़काई जाती है, तो हम में से कोई इंसान होंगे जिसके जरिए से आग को भड़काया जाएगा, या पत्थर से आग को भड़काया जाएगा। लिहाजा हम खुद भी जहन्नम की आग से बचें और ऐसे आमाल से बचें जिसकी वजह से हम पर अल्लाह की लानत हो और फिर हमें जहन्नम रसीद कर दी जाए, या फिर अपने घर वालों को भी बचाए। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इस लिहाज से अपनी बच्चियों को ये तालीम देना और ऐसे लिबास पहनवाना जो लिबास शरीर लिबास हो, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। लेकिन अफसोस कि इस चीज को हमें से कोई नहीं करता। इसी तरीके से एक अमल, रिश्वत लेना और देना, ये भी ऐसा अमल है जो इंसान को लानत के मौजिब करार देता है। यानी इस अमल के करने की वजह से अल्लाह की लानत होती है ऐसे लोगों पर। और इसी तरीके से एक अमल सूद का लेना, ब्याज का लेना, लोन में पैसा लेना, ये सारे आमाल ये लानत के मुस्तहिक करार देने वाले आमाल में से है। सूद इतनी खतरनाक जुर्म है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह पे, कई तरीके से, कई अल्फाज के साथ इनकी जुर्म को बयान किया है। कई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में उनकी हुर्मत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर सूद का लेन देन करता है तो गोया कि वो अपने माँ के पास गलत तरीके से आता है। ये कितनी बड़ी जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह का काम है कि इंसान अपने माँ से हम बिस्तरी करे। और सूद को लेन देन करने वाला, सूद पर कारोबार करने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर सूद पर लेन देन करता है, सूद के कारोबार पर मुलव्विस है, तो गोया कि वो अपनी मां से हम बिस्तरी करता है। इसी तरीके से सूद के बारे में इतनी सख्त वईद है कि सिर्फ
सूद लेने वाले गुनहगार नहीं है, बल्कि सूद लेने देने और उसमें शरीक हर फर्द, चाहे लिखने के तौर पर हो, गवाह के तौर पर हो, यानी किसी भी एतबार से अगर सूद की सपोर्टिंग आप करते हैं, यही वजह है कि शरीयत इस्लामिया में बैंक वाले को या एटीएम वाले को रूम किराया देकर उससे रकम हासिल करना, जबकि रूम किराया देना हलाल तरीका है, आपका कोई इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसे अमाल करने वाले को जो सूदी कारोबार करते हैं, अगर आप ऐसे अमाल को वहां पे बढ़ाने के लिए आपने किराया दिया तो वो भी आप उसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने रूम को एटीएम मशीन लगाने के लिए देते हैं या बैंक ओपन करने के लिए देते हैं। याद रखिए, जिस बैंक में सूदी कारोबार होता है, और जाहिर सी बात है वह सूदी कारोबार आम है, लोन का लेना देना ये आम है, तो आप किसी भी तरीके से सूदी कारोबार में सपोर्ट करते हैं, इन्वॉल्व है, तो आप लानत के मुस्तहिक करार पाते हैं। इतनी सख्त जुर्म है, इतना सख्त गुनाह है इसमें। आज ये चीजें आम होती जा रही है, एक नासूर बन चुका है। लिहाजा इन चीजों से हमें और आपको बचाना है, अपने मुसलमान भाइयों को बचाना है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा और मजीद आमाल है जो आपको लानत के मुस्तहिक करार देते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा में आपके सामने उसकी एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन जितने आमाल अब तक हमने सुन लिए हैं, ये हमारे और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे यहाँ समाज में एक मशहूर बात चलती है कि हम तो जाहिल हैं, हम तो जाहिल हैं। उलमा या फज़ाला एक काम करते हैं, वो गुनहगार हैं। जाहिल हो कहकर हम अपने आप को हीला बना लेते हैं कि हमारे लिए जायज हो गई। इस्लाम के जो भी अहकामात, चाहे मनहियात के तौर पर हो या अहकामात के तौर पर हो, जो भी इस्लाम की शरई अहकामात है, वो सारे हर एक फर्द पर नाफिज होता है, उसमें हर एक इक्वल है, बराबर है, चाहे आलिम हो या जाहिल, हर एक के लिए उतना ही जरूरी है जितना आलिम के लिए है। ये जाहिल होकर हम ये फुर्सत में ना रहे कि भाई हम जाहिल हैं तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सख्ती लाहिक नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। उलमाए किराम में से हर शख्स आपको शरीयत इस्लामिया की हर बात पहुंचाते हैं, और जब आप तक कोई बात पहुंच गई तो आप उसके जानकार हो गए, फिर आप खुद उसके जिम्मेदार हो गए। इसी तरीके से एक लास्ट और आखिरी आज की खुतबा का जो लानत के मुस्तहिक करार देने वाले अमाल में से है, वो आपके सामने जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। शराब नोशी, नशीली चीजों को यूज करना, और वो शराब नोशी में सिर्फ शराब नहीं है, हर वो चीज जिसमें भी नशा आपको फील हो, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खम्र, हर नशावर चीज जो है खमर है, शराब है, जो अक्ल को ढांक देने वाली है। और हर शराब, जो भी चीजें आपके अक्ल को ढांक देती है, आपको होश और हवास नहीं रहता, तो वो आपके लिए हराम हो जाती है। इस एतबार से आप देखें तो आपके लिए सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये सारी चीजें आपके लिए हराम हैं। अफसोस की बात यह है कि हमने सिगरेट और बीड़ी को इस तरीके से यूज करते हैं जैसे कि ये कोई मिठाई मिल गई हो। याद रखिएगा, बात सख्त है लेकिन परफेक्ट है। आज अगर हम में से किसी शख्स को यह कह दिया जाए कि आप खाने में मेरे घर पे दावत में आइए, लेकिन आपके लिए जो खाने में इंतजाम किया गया है वो
किस चीज का गोश्त है? खिंजीर का गोश्त रख दिया जाए तो सबकी जबान पे अस्तगफिरुल्लाह के लफ्ज निकल पड़ेंगी और सब हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे कि कैसे आलिम है, कैसे मुसलमान है कि हमें खिंजीर का गोश्त पेश कर रहे हैं। ये तो शरीयत में हराम है, ये शरीयत में हराम है, इसमें हम ताज्जुब करते हैं। और जब ये बातें कही जाती हैं तो सब छी छी करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचे कि जिस तरीके से शरीयत इस्लामिया में आपको खिंजीर हराम करार दिया गया है, इसी तरीके से शराब भी आपके लिए हराम है। उसी आयत में, उसी के नेक्स्ट बार जिस आयत में आपके लिए खरम यानी शराब को हराम किया गया है, वहीं पे खिंजीर का भी जिक्र है। तो फिर आप खिंजीर को हराम मानते हैं और शराब और गुटखा और तंबाकू, ये बीड़ी को हराम क्यों नहीं मानते? खिंजीर का गोश्त आपके लिए बुरा है, ये शराब आपके लिए कैसे सही होगी? सब इक्वल है, हराम होने के नाते सब बराबर हैं। और नुकसान देने के एतबार से भी आप याद रखें, जितना नुकसान आपके लिए सूअर का गोश्त, उतना ही नुकसान आपके लिए शराब, ये गुटखा, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये सारी चीजें उतने ही नुकसानदेह हैं। आप सोचते तंबाकू में नशा नहीं है, कहने वाले कहते हैं, तो इस एतबार से शराब में भी नशा नहीं है। शराब को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, लेकिन तंबाकू और बीड़ी में कहते हैं नशा नहीं है। अब जरा जो बंदा कभी बीड़ी नहीं पिया है या तंबाकू नहीं नोश किया है, एक मर्तबा उनको पिला के देख लीजिए या उनके मुंह में तंबाकू डाल के देख लीजिए, अगर नशा नहीं आती है तो फिर बताइए। चक्कर खा के वो गिरते नहीं है तो बताइए। और शरीयत का उसूल है कि जिसमें थोड़ा सा यूज करने की वजह से नशा है, वो कसीर तादाद में यूज करना भी उतना ही है। और आज तो अफसोस की बात यह है कि ये मस्जिद जो कि अल्लाह का घर है, हमारे मस्जिद के दरवाजे के सामने मस्जिद की मजाक बनाते हुए गैर अगर अपने प्रोग्राम में, अपने त्योहार में रास्ते से चलते हुए अपने गाने नाच जो उनके मजहब में, उनके दीन में जायज है, वो अगर करते हुए गुजरते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी जबान से, हर एक के फर्द की जबान से ये बात निकलने लगती है कि ये हमें सताते हैं, ये हमारी मस्जिदों की बेहुरमती करते हैं। आज हम मुसलमान होकर जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद को सौंपा था, जिनकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि मस्जिद की हिफाजत वो करे, मस्जिद की आबादी करने की जिम्मेदारी उन पर थी, आज वो खुद मस्जिद की धज्जियां उड़ाए, मस्जिद के सामने सिगरेट नोशी करे, मस्जिद के सामने तंबाकू नोशी करे, मस्जिद के सामने इस्लाम के खिलाफ सारे अमाल अंजाम दे, तो फिर ये मस्जिद की धज्जियां नहीं उड़ती, इसमें मस्जिद की हरमती पामाल नहीं होते, तब हमें ये सोच नहीं लायक होती कि ये अल्लाह का घर है। लेकिन गैर करे तो ये बुरा है, गैर करे तो ये बुरा है, और हम करें तो हमारे लिए हर चीज जायज है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम कलिमा को है। ये कहां का इंसाफ है? कहां का इंसाफ है? आप मस्जिद के सामने सिगरेट नोशी करें, मस्जिद के सामने गाना बजाएं, मस्जिद के सामने आप डांस करें, आप शादी विवाह में मस्जिद के सामने से गाड़ी चलाते हुए गाड़ी के अंदर जो डीजे बजती है इतनी तेज आवाज में, उसको आपको नजर नहीं आता, तब आपके प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन गैर आपके मस्जिद के सामने आए और थोड़ी सी कोई बात कह दे, उन्हें तो मस्जिद के बारे में पता नहीं है भाई ये कौन सी चीज है, उन्हें इस मस्जिद से लेना देना क्या है। तो याद रखें,
जो आवाज हम दूसरों पर उठाते हैं, जो उंगली दूसरों पर उठाते हैं, पहले अपनी तरफ उठा के देख ले। इस मस्जिद की पाक साफ रखने की जिम्मेदारी बहज़त मुसलमान आपकी होती है। जब आप इसकी खुद बेहुरमती करेंगे, आप इनकी धज्जियां उड़ाएंगे, तो दूसरों पर ये तवक्को रखना कि उनके खिलाफ बातें करना, ये कतन आपके लिए जायज और दुरुस्त नहीं होगा। तो ये बात याद रखें कि शराब नोशी, तंबाकू, ये सारे आमाल भी लानत के मुस्तहिक करार देने वाले आमाल हैं। इसी तरीके से शराब नोशी, ये सब आपके माली एतबार से भी नुकसान है, माली एतबार से भी नुकसान है, सेहत के एतबार से भी। अगर कोई साइंस के स्टूडेंट है या साइंस के टीचर है, तो इस बात को वो जानते हैं, समझते हैं कि सेहत के तौर पर भी ये मसाला, ये गुटखा, ये बीड़ी और सिगरेट, ये ऐसी चीज है। तंबाकू में तो खुद अपना ही नुकसान होता है, शराब में तो अपना ही नुकसान होता है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट में सिर्फ अपना नुकसान नहीं होता, अपने नुकसान के साथ साथ पूरे समाज के भी नुकसान होते हैं। जब आप बीड़ी पीकर धुआं छोड़ते हैं, इससे आपकी हवा गंदा होता है, जिसकी वजह से जो आप सांस लेते हैं, साफ हवा न मिल पाने की वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। ये बीड़ी पीने वाला, ये सिगरेट पीने वाला सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता, पूरी समाज और पूरी सोसाइटी की भी नुकसान करता है, उनकी भी जान की हलाकत का साथ मौजिब बनता है। तो ऐसे लोगों को जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, याद रखना चाहिए कि अपने आप को हलाकत में ना डालें। अल्लाह का फरमान है, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम। इसी तरीके से एक दूसरे मकाम पर कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, मौत की दहानी में ना डालो। कि ये सिगरेट या ये शराब पीकर हम अपने आप को हलाकत में डाल रहे होते हैं, और ये सारी चीजें इस एतबार से भी हराम है। कई एतबार से इस्लाम में अगर देखा जाए तो ये आपके लिए हराम है, एक माली एतबार से। और उसकी दलील कि आपको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है, इसमें फजूल खर्ची आपके लिए कतई जायज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान अश-शयातीन, कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। ये सिगरेट, ये शराब, ये क्या है? फजूल खर्ची नहीं तो क्या है? ये कौन सा हमारा काम है? हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है। ये फजूल खर्ची नहीं तो क्या है? तो ये सारे अमाल की वजह से हम अल्लाह के लानत के मुस्तहिक करार पाते हैं। लिहाजा हम में से हर एक को चाहिए कि इन अमाल से अपने आप को बचाए। और आज जिनने इस बातों को सुना, हर एक को चाहिए कि आज से ये अहद करके उठे यहाँ से कि आज से ये अमाल हमसे अपने आप से दूर करके रखेंगे। इसके लिए कोई जैसी भी कोशिश करनी हो, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमसे ये अमाल दूर हो जाए। और ये हवाला न दे कि ये आलिम ये कहते हैं, वो आलिम ये कहते हैं, ये तो ऐसे करते हैं। कोई कैसा करता है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने कब्र में जाना है, हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। कल क़यामत के रोज कोई किसी का नहीं होगा। बारहा मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि कल क़यामत के रोज आपके सगे बाप, सगा बेटा आपका नहीं होगा। तो कोई कैसा करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं इससे हमें मतलब होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही मानों में किताब और सुन्नत पर चलने वाला बनाए, सही मानों में किताब और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला तव्वाबुन करीम मलिकुम व रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وضل وكم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.